السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کے خبر نامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرخیوں پر۔ لارڈس انسٹیٹیوٹ آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی حیدرآباد کا واحد مسلم مائنورٹی آٹونومس انجینئرنگ انسٹیٹیوٹ ایفیلیٹڈ ٹو عثمانیہ یونیورسٹی بہترین پلیسمنٹس کے ساتھ۔ ڈرگس کا کاروبار، نائجیریائی باشندہ گرفتار، کوکین ضبط، ٹاسک فورس پولیس اور پنجاگٹا پولیس کی کارروائی۔ حضور آباد میں بی جے پی کو شکست دینے ہریش راؤ کی اپیل، 3 مار ملنا کمیٹی کے ارکان کی TRS میں شمولیت، تلنگانہ کے ساتھ مرکز کا جانبدارانہ سلوک۔ حضور آباد کے لیے اٹالہ راجندر بی جے پی امیدوار، پارٹی کا رسمی اعلان، سہرخی مقابلے کا امکان۔ لاٹھی چارج میں زخمی کارکنوں کی ریونت ریڈی نے کی عیادت، جدوجہد کرنے والوں کو ٹکٹ کا وعدہ، طلبہ اور نوجوانوں کی جدوجہد جاری رہے گی۔ گزشتہ 3-4 دنوں سے شہر میں موسم گرم، اعظم ترین درجہ حرارت 32.2 ڈگری ریکارڈ، جو معمول سے 1 ڈگری زیادہ، اقل ترین درجہ حرارت میں 3 ڈگری کا اضافہ۔ گورنر ڈاکٹر تملسائی سندرا راجن نے کہا، جواہر لال نہرو یونیورسٹی ملک میں منفرد شناخت اور یونیورسٹیز میں بہتر نام۔ JNTU گولڈن جوبلی تقاریب کا گورنر نے کیا افتتاح۔ کورونا وائرس کا شکار مریضوں میں مختلف امراض، ایسڈ ریفلکس کی عام شکایت، آنتوں میں خون منجمد اور درد شکم میں اضافہ۔ مشہور ٹی وی سیریل تارک مہتا کا الٹا چشمہ میں ننٹو کاکا کے کردار ادا کرنے والے اداکار گھنشیام نائک کا ہوا انتقال، وہ کینسر سے تھے مبتلا۔ ناظرین، وقت تو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ جرمنٹن ہاسپٹل آرتھوپیڈک سے متعلق ہر مریض یہاں شفا یاب، انعام یافتہ ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر آرتھوپیڈک سرجن، ایڈوانس آپریشن تھیٹر، ICU، ڈیجیٹل ایکس رے، لیبوریٹری، فیزیو تھراپی، فارمیسی، شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، لیڈی ڈاکٹرز اور ڈاکٹر ارجمن سلطانہ گینیکولوجسٹ کی خدمات حاصل، واجبی فیس اور مکمل سہولیات سے ہزاروں مطمئن، ایمبولینس سے آراستہ جرمنٹن آرتھوپیڈک ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطا پور، بریک کے بعد کی خبروں میں دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے۔ بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانب۔ شہر میں ڈرگس کے کاروبار میں ملوث ایک نائجیریائی باشندے کو ٹاسک فورس پولیس نے گرفتار کر لیا اور اس کے قبضے سے کوکین برآمد کر لیے۔ بتایا جاتا ہے کہ ٹاسک فورس ساؤتھ زون ٹیم نے پنجاگٹا پولیس کی مدد سے ڈینیل، جو نائجیریائی باشندہ ہے اور وہ سال 2014 میں اسٹوڈنٹ ویزا پر حیدرآباد آیا تھا اور وہ وویکانند ڈگری کالج چکوکٹ پلی سے ڈگری کی تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ وہ شہر کے علاقے شیخ پیٹ ٹولی چوکی میں مقیم ہے۔ پولیس نے بتایا کہ ڈینیل ڈرگس کے استعمال کا عادی ہے اور اسے خریدنے کے لیے اس نے ایک اور نائجیریائی باشندے جان پال سے، جس کا تعلق دہلی سے، رابطہ قائم ہے۔ سابق میں ڈینیل کو لنگر ہاؤس پولیس نے ڈرگس کے کیس میں گرفتار کیا تھا اور جیل سے رہا ہونے کے بعد وہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آیا اور ڈرگس کے کاروبار میں ملوث ہو گیا۔ پولیس نے بتایا کہ ڈینیل اپنے ساتھی نائجیریائی باشندے جان پال کی مدد سے ڈرگس کے خواہش مند گاہکوں کو 8 تا 10 ہزار روپے میں فی گرام کوکین فروخت کیا کرتا تھا۔ اس بات کی اطلاع ملنے پر ٹاسک فورس پولیس نے پنجاگٹا کے GVK مال کے قریب نائجیریائی باشندے کو حراست میں لے لیا اور اس کے قبضے سے 4 گرام کوکین برآمد کر لیا اور اسے عدالت میں پیش کرتے ہوئے جیل بھیج دیا۔ تلنگانہ کے وزیر فائنانس ہریش راؤ کی موجودگی میں جہدکار و صحافی 3 مار ملنا کمیٹی کے ارکان نے TRS میں شمولیت اختیار کر لی۔ رکن اسمبلی R رمیش و P کوشک ریڈی موجود تھے۔ ہریش راؤ نے کہا کہ BJP جیسی فرقہ پرست طاقتوں کے لیے تلنگانہ میں کوئی جگہ نہیں اور حضور آباد کے ضمنی چناؤ میں BJP کو شکست دینے 3 مار ملنا کمیٹی ارکان TRS میں شامل ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ حضور آباد میں TRS کی تائید میں اضافہ ہو رہا۔ انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت نے نوٹ بندی کے ذریعے بلیک منی منظر عام پر لانے کا اعلان کیا تھا۔ اس کے علاوہ ہر شخص کے اکاؤنٹ میں 15 لاکھ روپے کا وعدہ کیا گیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ جس طرح بنگال میں ممتا بنرجی کو کامیابی حاصل ہوئی، اسی طرح اٹالہ کو حضور آباد میں شکست ہوگی۔ انہوں نے کہا ہے کہ کسانوں کے خلاف قانون بنانے والی مرکزی حکومت کی راجندر کس طرح تائید کر سکتے ہیں۔ ہریش راؤ نے الزام عائد کیا کہ شخصی مفادات کے لیے راجندر نے BJP میں شمولیت اختیار کی۔
तेलंगाना के वजीर खजाना हरीश राव ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ तनकीद की और साबिक़ टीआरएस वजीर सेहत इटाला राजेंद्र के नजरिए पर सवाल उठाए। वो एक मीटिंग से खिताब कर रहे थे जिसमें 300 अफराद ने तेलंगाना राष्ट्र समिति में शमूलियत इख्तियार की थी। वर्धनपेट में एमएलए आरूरी भी मीटिंग में मौजूद थे। मजीद बराए हरीश राव ने इटाला राजेंद्र की शमूलियत पर सवाल उठाए, जिनके बखूल वो एक मारूफ बाएं बाजू थे। उन्होंने कहा कि इटाला राजेंद्र ने खुद गर्जी के लिए बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। इसके अलावा हरीश राव ने मजीद कहा है कि बीजेपी के मजहबी फलसफे की हैदराबाद में कोई जगह नहीं और सवाल किया कि दलित और बीसी बीजेपी से क्यों निकल रहे, वो तेलंगाना को क्या देंगे। डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं, क्या मरकजी वजीर इनको कम करेंगे। हरीश राव ने बीजेपी पर सवाल उठाए। तेलंगाना सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी ने पार्टी के तलबा और बेरोजगार नौजवानों के जंग सायरन प्रोग्राम में लाठीचार्ज में जख्मी कारकुनों की इयादत की। दिलसुख नगर ता एलबी नगर पदयात्रा की कोशिश पर पुलिस ने कांग्रेस कारकुनों पर लाठीचार्ज किया था। रेवंत रेड्डी ने मोहम्मद अली शब्बीर, डी राज नरसिम्हा, मल्लू रवि, शिवासेना रेड्डी, मल्ला रेड्डी, रंगा रेड्डी, मल्ला रेड्डी, राम रेड्डी और CH किरण कुमार रेड्डी और दीगर के हमरा इयादत की और डॉक्टर्स को बेहतर इलाज का मशवरा दिया। उन्होंने कारकुनों को भरोसा दिलाया कि तलबा और नौजवानों के लिए जद्दोजहद जारी रहेगी। रेवंत रेड्डी ने एलबी नगर चौराहा पहुंचकर तेलंगाना तहरीक में जान की कुर्बानी देने वाले श्रीकांत के मुजस्समे पर फूल निछावर करके खराज अकीदत पेश किया। मीडिया से बात करते हुए कहा कि लाठीचार्ज हो या फायरिंग, कांग्रेस खौफजदा नहीं होगी। उन्होंने कहा कि तलबा और नौजवानों की नाराजगी केसीआर हुकूमत के जवाल का सबब बनेगी। गुज़िश्ता 3 दिन से शहर में मौसम गर्म है। गुज़िश्ता रोज आजम तरीन दर्जे हरारत 32.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जो मामूल से 1 डिग्री ज्यादा है। अकल तरीन दर्जे हरारत में 3 डिग्री का इजाफा हुआ है, जो सुबह 24.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। डायरेक्टर महकमे मौसमियात ने बताया कि मौसमी हालात आइंदा 3 ta 4 दिन ऐसे ही गर्म रहेंगे। इसके बाद हल्की बूंदाबांदी का इम्कान है, ताहम बारिश नहीं भी हो सकती है। शहर में एक बार फिर गर्मी में शिद्दत पैदा हो सकती है। आजम तरीन दर्जे हरारत आइंदा चंद दिन तक 32 से 34 डिग्री के दरमियान रह सकता है। अजला, मंचरियाल, मुलुगु, पेद्दापल्ली, खम्मम, सूर्यापेट, नलगुंडा और वनपर्ती में भी दर्जे हरारत में अचानक इजाफा हो गया है। खम्मम में गुरारम के मुकाम पर सबसे ज्यादा 37.5 डिग्री सेल्सियस दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया गया। तेलंगाना की गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन ने कहा है कि जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी ने मुल्क में मुनफरिद शनाख्त बनाई और यूनिवर्सिटीज में बेहतर नाम है। JNTU गोल्डन जुबली तकारीब का गवर्नर ने इफ्तिताह किया। साल भर तकारीब जारी रहेंगी। उन्होंने कहा है कि गुज़िश्ता 50 सालों में JNTU हैदराबाद ने मुख्तलिफ शोबों में नुमाया कामयाबी पेशरफ्त की है। ये मुल्क की पहली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी का एजाज रखती है। उन्होंने कहा है कि मुल्क में टेक्नोलॉजी के फरोग और इस्तेफादा में इजाफा हुआ है। गवर्नर ने तलबा को मशवरा दिया कि वो यूनिवर्सिटी के मुनफरिद कोर्सेज में इस्तेफादा करें। यूनिवर्सिटी से अब तक 19 लाख तलबा फारिग हुए हैं। उन्होंने कहा है कि बैरूनी तलबा के लिए यूनिवर्सिटी में अलहदा सेंटर कायम किया जाएगा। उन्होंने हुकाम को मशवरा दिया कि वो मजीद बेहतर तालीमी सहूलतों पर तवज्जो दें। Good morning to each and everyone. Further, there is a ceremony of Golden Jubilee celebrations of JNTUH. It is a joy.
कोरोना वायरस का शिकार होने वालों में खून मुंजमद होने के अलावा आरिज कल्ब, गुर्दे व मसाने के अलावा हड्डियों के अमराज में इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा था, लेकिन अब कोरोना वायरस का कामयाब इलाज करवाने वालों में एसिड रिफ्लेक्स की शिकायत आम होने लगी है और एसिड रिफ्लेक्स के मरीजों की तादाद में इजाफे के साथ साथ अचानक आंतों में खून मुंजमद होने और शदीद दर्द शिकम की शिकायत के साथ मरीज दवाखानों से रुजू होने लगे हैं। निजाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से रुजू होने वाले मरीजों के ऑपरेशन और उनकी छोटी आंत को निकालने के इकदाम किए गए हैं और कहा जा रहा है कि आंतों में खून मुंजमद होने के सबब शदीद दर्द शिकम की शिकायत के साथ मरीज दवाखानों से रुजू होने लगे हैं और इन मरीजों में कोरोना वायरस से महफूज रहने के लिए दरकार एंटीबॉडीज मौजूद हैं, लेकिन आंतों में खून मुंजमद होने के सबब उनकी छोटी आंत को बाजार या ऑपरेशन निकालना पड़ रहा। निम्स के अलावा दीगर दवाखानों से भी इस तरह के मरीजों के रुजू होने की शिकायत मौसूल हुई है। माहिर अमराज शिकम डॉक्टर विनय कुमार ने इस सिलसिले में गुफ्तगू करने पर बताया कि कोरोना वायरस के इलाज के बाद एसिड रिफ्लेक्स मामूल की बात है, क्योंकि कोरोना वायरस के इलाज के दौरान मरीजों को इजाफी और भारी मिकदार में जो अद्वियात दी जा रही हैं, उनके मनफी असरात एसिड रिफ्लेक्स की शक्ल में सामने आने लगे हैं। लेकिन एसिड रिफ्लेक्स का शिकार होने वालों का इलाज कोई मुश्किल नहीं, बल्कि उनका बआसानी इलाज किया जा सकता है। बीजेपी ने हुजूराबाद ज़िमनी चुनाव के लिए इटाला राजेंद्र का उम्मीदवार के तौर पर ऐलान किया। जून में असेंबली से इस्तीफे के बाद राजेंद्र ने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर ली और वो रस्मी ऐलान के बगैर इंतखाबी मुहिम का आगाज कर चुके थे। इलेक्शन एलामिया की इजराई के बाद बीजेपी ने रस्मी तौर पर इटाला राजेंद्र को बाहैसियत उम्मीदवार ऐलान किया। उन्होंने गुज़िश्ता इंतखाबात में टीआरएस के टिकट पर कामयाबी हासिल की थी। चीफ मिनिस्टर से मुबैना इख्तलाफात और काबीना से बरतरफी के बाद उन्होंने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर ली। टीआरएस ने जी श्रीनिवास को उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस ने एनएसयूआई रियासती सदर बी वेंकट नरसिंह राव को उम्मीदवार बनाने का ऐलान किया। तीन अहम जमातों के उम्मीदवारों के ऐलान के बाद हुजूराबाद में सैरुखी मुकाबले का इम्कान है। 1 अक्टूबर से पर्चे एजात नामजदगी के अदखाल का आगाज हो चुका है और 8 अक्टूबर आखिरी तारीख है। 13 अक्टूबर तक पर्चे एजात नामजदगी वापस लिए जा सकते हैं, जबकि 30 अक्टूबर को रायदही होगी और 2 नवंबर को नतीजे का ऐलान किया जाएगा। पुराने शहर में काला पत्थर पुलिस की जानिब से खुसूसी क्राइम आगाही प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। काला पत्थर पुलिस ने बिलाल नगर के इलाके में मुकामी पुलिस की जानिब से एक खुसूसी जुराइम से आगाही प्रोग्राम शुरू किया। ख्वातीन के खिलाफ घरेलू तशद्दुद और नाबालिग लड़कियों के खिलाफ तशद्दुद। सोशल मीडिया के जरिए साइबर क्राइम, बैंक OTP नंबरों से बेवकूफ न बने। बिलाल नगर में जुराइम से मुतालिक आगाही प्रोग्राम के दूसरे दिन काला पत्थर CI और सुदर्शन के ज़रिए एहतमाम मुनक्किद हुआ। मुकामी लोगों की बड़ी तादाद ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। मुकामी दूध बोली MIM के कॉरपोरेटर सलीम ने तकरीब में शिरकत की। इसके अलावा दूध बोली कॉरपोरेटर मोहम्मद सलीम ने मीडिया से खिताब भी किया। आदेश दिया हमारा कमिश्नर साहब हैदराबाद सिटी को आदेश दिया, ये महीने पूरा स्पेशल ड्राइव चल रहा। नंबर ऑफ केसेस गांजा पे ये चल रहा। आजकल गांजा मिलना मुश्किल है, नहीं तो अपन दूर पे जाके 100 रुपए देखते छोटा पोटलम मिलता था, वो पोटलम ला के यहाँ ये करके सिगरेट में फिल करके पीते। एक सिगरेट पिए तो एक फुल बाटल पिए सर का 1000 रुपये खर्च 10 रुपये में हो जा रहा। एक 100 रुपये का पैकेट ला ले तो 10 बार पी सकते हो। उन पीने के बाद क्या भी कर सकते हो। औरत निकल गए तो बदतमीजी कर सकते, बच्चे मिले तो भी क्राइम कर सकते। कुछ भी करने को हटते नहीं उन्होंने। वो गांजा नहीं मिले तो क्या करते, व्हाइटनर पीते। वही 10 मिनट बोला ना, ये व्हाइटनर का क्या है, व्हाइटनर अपना एरेजर बोल के पेपर में एरेज करने का व्हाइटनर है। वो व्हाइटनर 10 में डाल के वो लोग सुनते, तुम्हें तो निशा आता। वैसा व्हाइटनर में ये सोल्यूशन में भी आ रहा, पेट्रोल पे भी आ रहा। उसमें से वैसा लोग किधर है तो आप लोग बोलना है, नहीं तो हमको बोल देते भी वो लोग बुला के उसका माँ बाप बुला के हम काउंसलिंग करते। आजकल ये गांजा में इंटर डिग्री स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग कॉलेज में भी बहुत ड्रग एडिक्ट हो गए। ये पूरा साइकाट्रिस्ट के पास जाके भी बताया तो भी कम नहीं हो रहा। ये ऐसा पागल लोग काला पत्थर में बहुत है। हम 2-3 दिन के एक बार पागल दवाखाने को बेच लो डेली। उसमें से ड्रग वेरी डेंजर है। ड्रग अब शेंदी पीना ये पीना जरा आराम से जरा टाइम लगता, मगर गांजा और व्हाइटनर से आदमी इमीडिएटली इफेक्ट होता। उन किसी का बात नहीं सुनता।
खुद न खुद काट लेता, माँ बाप का बात की किसी का बात नहीं सुनता, वो लोग भी मारते उनको। उस वजह से बच्चों को उसका नज़र लगा के कौन ये कर रहा, इमीडिएटली ये कर दिया तो काउंसलिंग करे तो वो रुकने का ये रहता। इसके बारे में भी आपका महीने में ये हुआ था ये बोल देना। और एक रिक्वेस्ट है, आप लोग भी नमाज को जाते मौसम को इमाम साहब को भी 1-2 मिनट 5 मिनट उसमें भी बयान देना, ये अवॉइड करना, औरतों के ऊपर क्राइम करना, जुल्म नहीं करना, वो लोगों को नहीं मारना, जोरू बच्चे को अच्छा देख लेना बोल के। नमाज पढ़ता घर को आके जोर को मारता, नमाज पढ़ता चेंदी खाने में जाके चेंदी पी के आता, पी के आके फिर औरत को मारता। औरत क्या बोलता, क्या कमाया बच्चों को खिलाने का, दे 500 रुपये बोल के ये बोलता, मगर आके क्राइम औरतों को मार के ये कर देते। हर एक नंबर ऑफ फैमिलीज में बहुत डिस्टर्ब है। उस वजह से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोग से भी, अपना कारपोरेटर साहब की भी मैं बोलूँ, अपना एरिया में बहुत मस्जिद है, हर एक मस्जिद में 2 आदमी रहता है, इमाम साहब रहता, मौजम साहब रहता। जो भी टाइम मिला तो एक 5 मिनट इसके बारे में। रियल एस्टेट की दुनिया में पहली बार डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स की फखरिया पेशकश। 100 स्क्वायर यार्ड्स की खरीदारी पर रजिस्ट्री मुफ्त पाएं। ये पेशकश महदूद है। जेपी डायमंड हिल्स फेज 1 की शानदार कामयाबी के बाद डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स के चेयरमैन हाफिज मोहम्मद जाफर की एक और मायनाज पेशकश। फेज 2 और फेज 3 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट 4 लाख और 5 लाख में दस्तयाब है। जहांगीर पीर दरगाह के दामन में मुकाबिले रिहाइश आबादी से मुतस्सिल इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, बीटी रोड्स, पार्क, फुटपाथ, आरटीसी बस, शजरकारी और मस्जिद की सहूलियत के साथ ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, क्लियर टाइटल, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, गेटेड कम्युनिटी, कुथूर मंडल, शमशाबाद एयरपोर्ट से महज 25 मिनट की दूरी पर। बुकिंग जारी है। जल्द अज जल्द रब्त पैदा करें। डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स, मीर आलम टैंक, अंसारी रोड, हैदराबाद। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़। लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी, बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।